Okay. Shall we go for the next problem? Now, please do it yourself. Please, as far as possible, you do it yourself. आता मी आम्ही पुष्कळ प्रॉब्लेम केलो. Till now, we have solved maximum problems. आता तुम्हाला येणार म्हणजे कुठेतरी मी तर बरोबर शिकवलं नाही तर तुम्ही ऐकला नाही. And I tried my best to teach you. आता तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा जास्त अजून काय शिकवा? हा, take down the question. A partially saturated soil from an earth fill, a partially saturated soil from an earth fill has natural water content of 19%. Natural content of 19% and bulk density of 19.33 kilonewton. 19.33 kilonewton per meter cube. A partially saturated soil from an earth fill has natural water content of 19% and bulk density of 19.33 kilonewton per meter cube. Assuming specific gravity of soil solids as 2.6, assuming specific gravity of soil solids as 2.6, compute S and E. S म्हणजे degree of saturation. S का मतलब degree of saturation and E is White's ratio. If subsequently the soil gets saturated, find gamma saturation, gamma D. This I will take afterwards. And one more thing I will tell you. Here it is mentioned as bulk density. Bulk density, the bulk unit weight layout. But unit is in kilonewton per meter cube. Therefore, you take this as gamma B or gamma. गामा बी और गामा. देखिए डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सीसी रहता है या केजी पर मीटर क्यूब रहता, जबकि यूनिट वेट का यूनिट जो रहता वो रहता किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. 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 क्वेश्चन एक बार और लिखो जो लेट आए. सेंटेंस लेट है का? A partially saturated soil from an earth file has natural water content of 19%. Small w is 19%. Bulk density means gamma b. Gamma b is equal to 19.33. Gamma b or gamma same thing. G is 2.6. So first of all you calculate what is, yes, degree of saturation and then E. Degree of saturation and E. Please kara. Second part me karto. If subsequently the soil gets saturated, find gamma saturation and gamma D. At least you do first part. What is the given data? Small w is 19%, 0.19. Gamma B is 19.33 kilonewton per meter cube. G is 2.6. G is 2.6. So S is degree of saturation and E is White's ratio. E is White's ratio. E is White's ratio. Yes, somebody else did very good. Yes, आंसर बोलो, गलत सलत भी बोलो तो आप कर रहे बोल के मालूम होता है. Yes, श्रेयस. Okay.
Shreyas has got some answer. Yes, right, Shreyash. After getting E, you find, please find what is S. First you find E. देखिए गामा दिया, गामा से ई चाहिए हमको. ई का फॉर्मूला मालूम है आपको? E इज इक्वल टू 8 हो गया, वेरी कॉमन फॉर्मूला, G गामा W बाय गामा D माइनस 1. ओके श्रेयस, E इज इक्वल टू G इंटू गामा W बाय गामा D माइनस 1. पण इथं गामा D माहित नाही, गामा B दिलाय. गामा D can be found by gamma B divided by or gamma divided by 1 plus water content. Gamma D is equal to gamma B divided by 1 plus small w. So gamma D is equal to gamma B is 19.33 divided by 1 plus 0.19. So gamma D is equal to 16.24 kilonewton per meter cube. Gamma D is equal to 16. Okay, right. वैष्णवी, ऐसा आंसर लिखते जाओ. एटलीस्ट तुम लोग क्या है मालूम है, मैं आपको पहचानता हूं और आप टच में है बोल के मालूम होता. सो गामा डी इज 16.24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. यस इज 0.33, ई इज 0.57 इज राइट आदित्य अभय. ओके यस, लेट मी सी शीतल. गामा डी आया. गामा डी आने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है E is equal to G gamma W by gamma D minus 1. Very common formula. E is equal to G gamma W by gamma D minus 1. G is 2.6. Gamma W is 9.8. Divided by gamma D is 16.24. Yes, Sonali, right? This is E. How you get E? यहाँ तक आया क्या सबको? कुछ डाउट का सवाल ही नहीं उठता. वही रिपीट हो रहे. 15-16 प्रॉब्लम हो गए. कुछ भी नया नहीं है ना, कुछ डिफिकल्ट है अब तक. अगर से कुछ डिफिकल्ट रहता तो मैं खुद करता हूं. ऐसा डिफिकल्ट अब तक कुछ भी नहीं आया आपको. सो E इज इक्वल टू, प्लीज एवरीबॉडी इज क्लियर? ओके सोनाली, E आया. E आने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है E is equal to omega G by S. E is equal to omega G by S. E is equal to omega G by S. S is equal to omega G by E. ओमेगा और स्मॉल w. स्मॉल बोलना डिफिकल्ट होता बोल के मैं ओमेगा बोलते जनरली. सो ओमेगा इज 2.6, G is 2.6, omega is 19%. 0.19. E just you have calculated 0.570. You substitute it here. S is equal to 0.8667 or 86.67%. आया सबको? यहां तक क्लियर है? ओके चलता आकांक्षा. ओके सो 86.67. E is 0.570. यहां तक हो गया. What is the second part he is asking? If subsequently the soil gets saturated. If subsequently मतलब इसके बाद soil पानी आते गया और soil saturated हो गया. Saturated हो गया मतलब yes कितना हो गया? 1 हो गया. 100% हो गया या 1 हो गया. जब soil fully saturated हो गया, what is gamma saturated and what is gamma D? What is gamma saturated and what is gamma D? So coming here, so when soil is saturated, मैं नहीं किया है complete मेरे ख्याल से. When soil is saturated, what is gamma saturated and what is gamma D? हाँ करो देखिए आप लोग. मैं नहीं किया, आप लोग करके बताओ मेरे को. अब S का वैल्यू 1 ले लो, E सेम रखो, सैचुरेटेड में 1 रखो और ये 1 रखो, तो नया वाटर कंटेंट मिलता आपको. सेम G ले लो, वाटर कंटेंट नया मिलता. उस वाटर कंटेंट को यूज करके आप गामा सैचुरेशन निकालो फॉर्मूला अप्लाई करके और गामा डी निकालो. समझ में आ रहा है आपको? When soil gets saturated,
S becomes 1. S becomes 1. So S becomes when 1, S 1 झाल्यानंतर E तर सेम घ्यायचा आहे, G पण सेम घ्यायचा आहे. What is the small w? वॉटर कंटेंट काढायचं आणि एकदा वॉटर कंटेंट भेटल्यानंतर गामा सॅच्युरेशन आणि गामा डी चा फॉर्म्युला काढा, मागे काढून सबस्टिट्यूट करून मला आन्सर सांगा. करा लवकर करा, प्लीज डू इट. करून आन्सर काढा. Somebody did. Let me see, please. Okay, Shreyas, I think it is right. Let the others do. Gamma saturation है क्या Shreyas से? Then what is gamma D? Sonali, this is gamma saturation. Huh? Okay, gamma saturation is 19. So then what is gamma D? Okay, gamma D is 15.85, right? Right, Shreyas, yours is gamma D. And gamma saturated, Gaurav? What is the gamma saturated? Sonali, you find gamma D, please. Priyadarshini got right. Very good, Deshmukh. करा प्लीज, असं करत जा. फॉर्म्युले तुमच्याकडे दिलेले आहेत सगळे, बघा आणि करा. Each and every problem if I solve, no, there is no use at all. ते काही यूज होणार नाही. Dry density 16. Okay. Others have got Sheetal 15.85. Please check it. Sheetal Bhairwadi. Somebody has got 15.85. Okay, whatever it is, you use the formula. फॉर्म्युलेचं लिस्ट पण दिलो मी तुम्हाला. Over. Shall I go for the next problem? If you have any doubts, please ask. 19.80 square gamma saturated. बघा प्लीज. मी तर केलं नाही, मला वाटतं हे प्रॉब्लेम मी सॉल्व केलं नाही. Oh, I did it here. Okay, I did it here. Okay, please, I did it here. You see here, when the soil gets saturated, okay, इथं बघा मी केलो. When the soil gets saturated, S is equal to 1. E is equal to Wg by S. Therefore, W into G. Now W becomes saturated. Saturated W into G is equal to E S into S. So W saturated is equal to E into S by G. E is 0.57. As it is saturated fully, it is 1. G is 2.6. So W saturated is equal to 21.92%. 21.92%. This is the new water content. And once you get new water content, gamma D is equal to gamma B divided by 1 plus W saturated. It is 15.855. Most of you got it. And gamma saturated is given by G plus E divided by 1 plus E into gamma W. G plus E divided by 1 plus E into gamma W. You substitute all the values and gamma saturated is 19.8. बहुत से लोगों को ये भी आया, तो याद रखो gamma D is 15.855 and gamma saturated is 19.8. Gamma saturated is 19.8. Please लिख लो ये सब, लिख लो सभी लोग. When the soil gets saturated, S becomes 1. You find the new water content. Once you get new water content, then you can find gamma D and gamma saturated. Both the formulas I have given to you. Gamma D is equal to gamma divided by 1 plus W formula है.
तो gamma is written as gamma B and gamma are same. याद रखो, gamma is bulk unit weight or unit weight, same thing. And here instead of W saturated I have taken, because when the soil is saturated. So 15.855 or 19.8. Over लिहून घेतला तर 21.98, 15.855 and 19.8. 19.8 kilonewton per meter cube. 19.8 kilonewton per meter cube. क्लियर? अभी भी किसी को कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास लूंगा या आपको अकेले को बताऊंगा, कुछ आप लिखो चैट बॉक्स में, आप इन्वॉल्व हो जाओ. हाँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको इतना लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं, बार बार 10-10 बार बोला, ये सब इंपॉर्टेंट है. सारे डेफिनेशन एक बार फिर देख लो, सारे फॉर्मूले डिराइव कर लो, गामा क्या है, ई क्या है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता, एवरीथिंग शुड बी क्लियर. नाउ यू टेक डाउन दिस क्वेश्चन. Moist density and degree of saturation of soil are given below. Moist density and degree of saturation of a soil are given below. This is gamma B 1690, 1808. These both are in kg per meter cube. And this S is percentage, degree of saturation. This is 50%. This is for 75%. So this value is for 50% saturation and this gamma B value is for 75% valuation, saturation, sorry. So you have to find G and E. Question सब समझून घ्या. Gamma B दिलाय आपल्याला. For this value, these are the values of gamma B. These are the degree of saturations 50 and 75. Determine G and E. Determine G and E. यस, ट्राई करो, 2-4 मिनट सोचो, अपने दिमाग को तकलीफ दो, गलत हुआ तो हुआ. प्लीज जब तक आप नहीं, मैं चुप हर प्रॉब्लम करते बैठूंगा तो कोई मतलब नहीं. मैं तो एंड में करता हूं एक ऐसा भी, अगर से आप खुद करेंगे क्या गलती है मालूम हो जाएगा आपको, तो इजी होता ना समझने में क्वेश्चन. मास, मॉइस्ट डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ सॉइल आर गिवन बिलो. ये गामा बी का वैल्यू है, गामा बी का वैल्यू है. ये इस परसेंटेज के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये इस परसेंटेज के लिए आपको जी और ई निकालना है. देखिए मैं करता हूं, थोड़ा मुश्किल है ये, उतना मुश्किल भी नहीं है. व्हाट इज द गिवन डाटा? What is the given data? Given data is gamma B is equal to 1690 kg per meter cube when S is 50%. When S is 50%. When S is 50%, gamma B is this much. And when S is 75%, gamma B is this much. This much data is given to you and you have been asked what is G and E. We are having the general formula for gamma. If you remember this, gamma B is given by G plus ES divided by 1 plus E into gamma W. This is, I think, 6th or 7th derivation is there. General unit weight formula. Gamma B is equal to G plus ES divided by 1 plus E into gamma W. Now,
gamma b is given to you, how much it is 1690, g नहीं मालूम as it is, plus e मालूम है क्या, नहीं मालूम, e as it is, but s मालूम है, s 50% है, 0.5 divided by 1 plus e into gamma w is 1000, और इस 1000 को आप इस तरफ लेकर आओ, 1690 by 1000 it is 1.69. So 1.69 is equal to g plus 0.5 e divided by 1 plus e. This is equation number 1. Please लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछो. Gamma b is equal to g plus e divided by 1 plus e into gamma w. Gamma b का वैल्यू रखो और किसका वैल्यू रखते हैं, यस का वैल्यू रखो, 50% मींस 0.5. So 1.69 is equal to g plus 0.5 e divided by 1 plus e. You see here, beta, I have taken 1000 here because this gamma b is in 1690 kg meter cube. अगर से आप इसको कन्वर्ट करते गामा में, मतलब रो में, तब हम लेते थे. इसलिए एक्चुअली ये रो बी लेके मानना चलना है हमको, ये रो बी लिखना है, तो आप इसीलिए ये 1000 लिया मैं. अंडरस्टूड? गौरव मैं 1000 क्यों लिया, क्योंकि ये 1690 केजी पर मीटर क्यूब में है, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में रहता था ना, तो मैं यहां पर लेता था 10 या 9.81. फॉलोड? समझ में आ रहा क्या, ये कंफ्यूज क्लियर होना आपको? हाँ, ओके. गौरव यू सी द यूनिट्स मेनी टाइम्स इन द क्वेश्चन पेपर आल्सो, बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट सेम लिखते हो लोग. अगर से क्या ग्राम पर सीसी में है, या केजी पर मीटर क्यूब में है, या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, वो देख के डिसाइड करो. मैं 1000 इसी में लिया हूं क्योंकि यहाँ पर गामा जो है आपका केजी पर मीटर क्यूब में है, इसीलिए लिया हूं. और दिस इज द इक्वेशन 1. ऐसे कुछ डाउट्स पूछो आप डाउट पूछो तो मुझे लगता है कि आप कुछ पढ़ रहे. इफ इट इज इन ग्राम पर सीसी देन सी बेटा, इफ इट इज ग्राम सीसी पर 1 ये 1 हो जाता, अभी भी कर सकते हम, ये 1.690 हो जाता, ये 1 हो जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ग्राम पर सीसी में है तो 1 ले लो, केजी पर मीटर क्यूब में है तो 1000 ले लो, और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है तो 9.81 ले लो, 9.81 ले लो. आया समझ में? ओके. सो नाउ गोइंग फर्दर. ओके, तेजस्वी, वेरी गुड तेजस्वी, she tried it. What about Monalik or something? Monica Monali, where is she? Not at all active from the last 2-3 classes. Okay, so now 1.69 is equal to g plus 0.5 e divided by 1 plus 1 by e. This is equation 1. Then you take a second case. Second case. Second case is here. For second case, gamma b is equal to g plus es divided by 1 plus e into gamma w. ये स्लाइड्स आगे पीछे हो गए, मैं जब सबमिट करूंगा तो आप केयरफुली देखो, थोड़े आगे पीछे हो गए. तो देखिए सेकंड केस में गामा इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, बट गामा बी इज नाउ 1808 इज इक्वल टू जी प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 75%, 0.75 into E divided by 1 plus E into 1000. So now this becomes 1.808 is equal to G plus 0.75 E divided by 1 plus E. This is equation 2. This is equation 2. Got it? Gamma B is equal to G plus ES divided by 1 plus E into gamma W. So you will get this as equation 2. और आपके पास equation 1 ऑलरेडी आ चुका है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं. प्रतिभा स्पेसिंग प्रॉब्लम आई थिंक, थोड़े आगे पीछे हो गए स्लाइड्स. Okay. Now from equation 1,
इक्वेशन 1 है आपके पास, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.69 into 1 plus e is equal to g plus 0.5 e. इक्वेशन 1 मालूम है ना आपको कहां पर है? Where I have given, here it is. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.69 into 1 plus e is equal to g plus 0.5 e. 1 plus e को LHS में लाओ, तो 1 point e को LHS में लाए तो 1.69 into 1 plus e is equal to g plus 0.5 e. तो 1.69 into 1 is 1.69, 1.69 into e is 1.69 e, ये 0.5 e LHS को ला लो, equal to g, और 1.69 plus 1.19 e is equal to g. This is equation 3. This is equation 3. Got it? कुछ डाउट है तो पूछो, लिख लो आप, साइमल्टेनियसली लिख लेते भी जाओ, चुप सुने तो नहीं समझ में आता। इक्वेशन 1 से ऐसा हो गया। अब इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 से क्या बनता? इक्वेशन 2 से बनता ये 1.808 इंटू 1, यहां पर है ना आपका इक्वेशन, इसको इस तरफ लेकर जाओ, 1.808 इंटू 1 प्लस ई इज इक्वल टू जी प्लस 0.75 ई। 1 प्लस ई को एलएचएस को ला लो, और एलएचएस को लाने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलता 1.808 इंटू 1 प्लस ई इज इक्वल टू जी प्लस 0.75 ई, और 1.808 into 1 is 1.808 plus 1.808 e is equal to g plus 0.75 e, और 1.808 e को आप इस तरफ लाके माइनस करो तो 1.058 e is equal to g. This is equation 4. This is equation 4. समझ में आया क्या? बोलो प्लीज। अब क्या करो आप, g इज इक्वल टू समथिंग, g इज इक्वल टू समथिंग, ये दोनों इक्वेशन इक्वल करो और e का वैल्यू निकालो। LHS ऑफ 3 इज इक्वल टू LHS ऑफ 4, क्योंकि राइट हैंड साइड में g है, तो दोनों इक्वेशन इक्वेट करो, सॉल्व करो, गेट द वैल्यू ऑफ e. somebody has given it. Okay, Sheetal Tate, very good. And already Tejasri Lendway has did. Okay, others also please do it. You simplify this and get the value of e, and once you get S, once you get e, substitute in any one of the equation and get the value of g, and get the value of g. And get the value of g. करो प्लीज, और दोनों इक्वेट करो, सॉल्व करो, तो ई आता 0.8939, और इस ई को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको जी का वैल्यू आता है S. शीतल, वेरी गुड, बोथ शीतल आर डूइंग। सो प्लीज करो ये सब आप सॉल्व। मैं चुप पढ़ा के जा रहा हूं, चिल्ला के जा रहा हूं, आप नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं। डोंट एक्सपेक्ट दैट कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा या मतलब आप क्लास को आएंगे, ऐसा अभी दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। तो प्लीज आपको यही मेथड से पढ़ना है, तो आपको, मुझे भी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा, आपको भी लगाना पड़ेगा, लेकिन आप जब तक कुछ कोशिश नहीं करेंगे, मैं कितना भी चिल्लाऊं समझ में नहीं आता। प्लीज बी रेगुलर, टेक योर नोटबुक, कैलकुलेटर, बैठो, फिर मैं जाने के बाद फिर ट्राई करो, फिर कोशिश करो। And whatever the problems today I am solving, all are from competitive exams. Remember, competitive exam से लेके solve कर रहा हूं मैं। So in this way you will get E and G. In this way you will get E and G. Clear the things? Moist density and degree of saturation are given to you. That is gamma B and S is given to you. Gamma B and S is given to you. तो ये formula use करो. Somebody has asked me, sir, why you have taken gamma W as 1000? It is because beta, because gamma B is in kg meter cube, I have to take the same unit. That's why I have taken 1000. Suppose if he has given gram per cc, means you have to take 1.
Suppose if you would have given it in kilonewton per meter cube, means you have to take it as 9.81. It is 9.81. So now you simplify this. This is equation 1. उसी तरह सेम तर्ज पर इक्वेशन 2 भी बनाओ. सेकंड दो और एक सेट लेके एक और लेके इक्वेशन 2 भी बनाओ. यस वैष्णव, वेरी गुड. सो दिस इज इक्वेशन 2 भी करो और दोनों इक्वेशन को ऐसा सॉल्व करके 3 और इक्वेशन 4 बनाओ इन टर्म्स ऑफ जी, और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो. एलएचएस सिंप्लीफाई करो. ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. अब तक सीखे होंगे आप. नाउ यू आर इन थर्ड ईयर. दो इक्वेशन आए तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेट करो. सो ई विल गेट 0.89 and 84. Dhaval, please check once again. Little bit less it is. और ओके शायद डेसिमल में कहीं तो फर्क हुआ होगा. फिर भी चेक करो आप. थोड़ा आपका अलग दिख रहा आंसर. सो इट इज ई इज 0.8939 and then G is 2.753. Clear the things? प्लीज कुछ डाउट है तो पूछो. ओके, क्लियर द थिंग्स. देखो अभी भी आपको किसी को कोई डाउट है, पर्सनली मुझे फोन करो, बात करो मुझसे. हाँ एस कटेपा कामले, आर यू फॉलोइंग? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे डिस्कस करो. अभी बेसिक अभी से सीखते चलो, अभी भी देर नहीं हुआ. एक बार ये सब समझ में नहीं आया आपको, आगे बहुत मुश्किल होता. ई जी ये सब क्या है, सब नया नया लगता. तो सारे डेफिनेशन एक बार और पूछो. 4 स्लाइड्स में अपलोड किया हूं. आज 5th और 6th करता हूं. लिंक में भी जाकर देखो, 4 है. 5th और 6th आज करता हूं और 6 के 6 स्लाइड्स आप फॉलो करो, देखो. ओके, शैल आई गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? यस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा मुश्किल है. ऐसे प्रॉब्लम मैं करता हूं. देखिए जो मुश्किल है वो मैं करता हूं, जो इजी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं मैं. 1000 मीटर, और इंपॉर्टेंट है देखो बहुत. 1000 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ फिल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड. 1000 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ फिल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड. हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल इज टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम बारो पिट in which the White's ratio is 0.95 if the White's ratio of earth fill is to be 0.7. क्वेश्चन लिख लो पहले. I will give you 2 minutes. पहले क्वेश्चन लिखो, पहले आप खुद सोचो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं. क्वेश्चन लिख लो. और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस को रेड पेन से टिक करके रखो जो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं रहते. 1000 meter cube of earth fill is to be constructed. How many cubic meters of soil is to be excavated from borrow pit in which the White's ratio is 0.95? If the White's ratio of earth fill is to be 0.7. क्वेश्चन लिख लो प्लीज, मैं समझाता हूं आपको. और shall I explain? देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले जो डिप्लोमा के हैं शायद उनको तो मालूम होगा, आप लोगों को नहीं मालूम तो मालूम कर लो. कटिंग एंड फिलिंग, ये 2 चीजें हैं हम लोग करते. कभी भी अर्थ पे क्या मतलब फील्ड वर्क में क्या करते, कटिंग एंड फिलिंग. कटिंग कब करते, जब उतार मतलब क्या बोलते हैं आपको, चढ़ान आया या मिट्टी ज्यादा है वहां पर, लेवल से भी मिट्टी. सपोज करो आपका ग्राउंड लेवल 100 है,
उसके ऊपर मिट्टी है आपकी, तो उसको हम क्या करते, कट कर देते, दैट इज कॉल्ड कटिंग। कहीं पर क्या होता, आपका ग्राउंड लेवल 100 है लेकिन आपको आगे खड्डा है, तो वहां क्या करते, जो कट किया हुआ मिट्टी लेकर जाके भर देते। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग एंड फिलिंग। समझ में आ रहा आपको, कटिंग क्या है, फिलिंग क्या है। कटिंग जो ग्राउंड लेवल से ज्यादा रहता, या जो आप लेवल मान रहे उससे ज्यादा है, उस मिट्टी को हम कट करते, इट इज कॉल्ड कटिंग, और वो मिट्टी यूज करके हम फिल कर देते जहां पर खड्डा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग एंड फिलिंग, दिस इज कॉल्ड कटिंग एंड फिलिंग। तो क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर ट्राई करो। 1000 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ फिल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो आपको अर्थ फिल करना है कितना, 1000 मीटर क्यूब, मतलब अर्थ फिल का वॉल्यूम कितना है, 1000 मीटर क्यूब है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल इज टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम बारो पिट। अच्छा, मुझे ये अर्थ फिल करने के लिए बाजू कहीं से खोदना पड़ता, तो वो मुझे कितना खोदना है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल इज टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम बारो पिट, मतलब एक है अर्थ फिल जहां पर आप मिट्टी भरने जा रहे, और एक है बारो पिट जहां से आप मिट्टी निकाल रहे, जहां से आप मिट्टी निकाल रहे। तो दिस इज अर्थ फिल, दिस इज बारो पिट, दो चीजें हैं। और अर्थ फिल का वैल्यूम दिया आपको, बारो पिट का वैल्यूम पूछ रहा, कहां से मिट्टी निकाल रहे आप उसका वैल्यूम पूछ रहा। आगे क्या बोल रहा हूं, इन विच द वाइड्स रेशियो इज 0.95, मतलब बारो पिट में 0.95 है और अर्थ फिल में 0.7 है। समझ में आया आपको, अर्थ फिल क्या है और बारो पिट क्या है। मालूम हो रहा क्या, व्हाट इज अर्थ फिल एंड व्हाट इज बारो पिट। व्हाट इज अर्थ फिल एंड व्हाट इज बारो पिट। अर्थ फिल में मिट्टी भरना है, बारो पिट में खोद के निकालना है, और इसका वैल्यूम अर्थ फिल का 1000 मीटर क्यूब है, और इसका वैल्यूम आपको निकालना है। इसका वाइड्स रेशियो 0.7 है, इसका वाइड्स रेशियो 0.95 है। इसके बाद ब्रेक है, आप 2-4 मिनट का ब्रेक लेता हूं, और ड्यूरिंग ब्रेक टाइम क्या आप कर सकते, जरा सोच के देखो, वाइड्स रेशियो का डेफिनेशन यूज करो, ये क्वेश्चन कर सकते क्या, आप ट्राई करो। उसके बाद ब्रेक के बाद मैं कर दूंगा इसको। सो अर्थ फिल 1000, बारो पिट मालूम करना है वैल्यूम, अर्थ फिल का वाइड्स रेशियो है 0.7, वेराज बारो पिट का वाइड्स रेशियो है 0.95। 0.95 करो, प्लीज सोचो। अब इसका ब्रेक होता, और ब्रेक के बाद, ब्रेक में करो, 5 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, उसके बाद मैं कंप्लीट करता हूं, एंड आई विल टेक अटेंडेंस आल्सो आफ्टर दिस ब्रेक।